Hello, everyone. Today we have with us two beloved seniors from my college days. We have Priya Gupta ma'am and Viswajit Senapati sir, settled in Chhatrapati Sambhaji Maharaj Nagar, playing a slightly different role than what we are all aware about. Parents to 11-year-old Dishita and 8-year-old Dhriti, they learned a few different life lessons along the way. So, shedding light on the different hat they wear as parents to Dhriti after her cerebral palsy diagnosis, they are here with me today discussing therapy, life, mental health, parenting the older child, among many different things. So, welcome, Viswajit sir. Welcome, Priya ma'am. Thank you for agreeing to do this with me. Thank you, Devasmita. Debosmita, for considering us. Thank you so much. So I will introduce the both of you briefly. So Biswajit sir is currently working at Amplifone India Private Limited as a senior audiologist. He is working here since 2014. Previously, he was working at Spectrum Healthcare, SEC Day School, and Ear Society at Mumbai. He is passionate about traveling, listening to music, and is a complete foodie. Priya ma'am working at GMCH Chhatrapati Sambhaji Maharaj Nagar as an audiologist since 2013, and her past experience includes being a clinical audiologist at AYJ NISHD Mumbai, Sukhada Child Developmental Center, and Surya Hospital in Mumbai. She is passionate about meeting new people, traveling, dancing, listening to music, among many other things. So, welcome, welcome both of you, sir and ma'am. So, starting off, this will be both in Hindi and English. आपको जिसमें अच्छा लगता है, जिसमें दिल से expressions better होता है, उसमें बोलिए. There is no problem with that. So the first question to you as Dhriti's diagnosis, आपको कब लगा something is different, something is amiss, with the background that you are already professionals before that, ऐसे. See, we would like it was like it was a Caesar because she had some perinatal history. Okay, So she was an ICU graduate for 17 days. So that time it was a red flag that if she's an ICU graduate, then we will have to take care of certain things. correct. So like we were monitoring all her developments every month, and we were into close contact with our neurologist and family members who are into this, so that way tracking around. So Okay, I would say around 3 months, Mm. 3 months Yes. of age, when there was, that primitive reflexes, certain they should that should go. So that time we had a click, there is something wrong. So then we had gone for MRI and everything, and then we came to know that on MRI it is showing PVL. Then we did a developmental assessment here only, and we started off with therapy at like 5 months of age. you started off with physiotherapy. Physiotherapy, yes, Yes, yes. we started with physiotherapy at around 5 to 6 months of age. Okay. And basically, matlab, the fact that you both are ASLPs, matlab, before parents, before this, you have an older child also. आपके पास ये knowledge था. Did it help in any way? Whether it was understanding, looking out for signs. मैं acceptance की बात तो I will talk about it later. Did it help in any way, the previous knowledge, Yeah, degree? because we used to compare, no, हम लोग जो हाँ, अपनी बड़ी लड़की है, what age she developed all her milestones. milestones, हाँ, and uh, the younger one, she was delaying there is delay in the milestones. So hmm, yes, that was that comparison we are able to do. एंड उससे खेलते वक्त भी, जैसे हैंडलिंग करते वक्त, अभी हाँ, दिशिता को जब हैंडल करते तो शी वाज वेरी सॉफ्ट, एंड और धृति को करते तो लाइक हाथ टाइट रहना है या पैर टाइट रहना है, और आई ट्रैकिंग के टाइम पे लेफ्ट की तरफ पूरा ट्रैक नहीं कर पा रही है, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चेंजेस वी यूज्ड टू ऑब्जर्व, एंड देन हम उसको तुरंत एसेस कराना है, कौन स्पेशलिस्ट को दिखाना है, ऐसे लाइक फुल मॉनिटरिंग वाज देयर. okay, okay. So, like, how did physiotherapy eventually change your life? Because I think physiotherapy is a large part of your. See, basically, physiotherapy and occupational therapy, I would say we had taken both in hand Okay. since 6 months, and there was some vision issues, in the sense she developed squint at 6 months of age. Earlier, it was not there. Okay.
So we have undertaken like visual therapy also. uh, so everything, in hand it had gone. So like our primary focus was not speech at that time, it was more of हाँ हाँ, physio, because head करेक्ट holding आना चाहिए, turning आना चाहिए, eye tracking आना चाहिए. Because as a करेक्ट concern ऐसा था ना कि इसको ऐसा तो नहीं ये भी प्रॉब्लम है, इसको ऐसा तो नहीं ये भी प्रॉब्लम है, लाइक टू रूलिंग आउट फ्रॉम कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस. करेक्ट. इतने एक्सट्रीम तक भी हम सोचते थे कि सब चीज रूल आउट करना है. हाँ. सो जैसे जैसे वो हुआ कि नहीं ये नहीं है, सो देन वी आर लाइक कॉन्फिडेंट, ओके ये नहीं है ना, तो अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये नहीं है तो इसके ऊपर काम सकते हैं. सो ऐसे धीरे करेक्ट. धीरे 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 वी डिड लाइक अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग फिजियोथेरेपी. सो ऐसा है कि वंस द डायग्नोसिस केम लाइक शी इज सीपी डिस्टोनिया क्वाड्री. हम्म. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर कॉलेज डेज की इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा स्लो होता है. हम्म. हम्म. तो वो हमारे एक दिमाग में था कि प्रोग्नोसिस स्लो रहता है, तो हमें एकदम भागना नहीं है. स्लो हम्म. एंड स्टडी विंस द रेस. सो बेस्ट पॉसिबल रेगुलरिटी जितना रख सकते हैं हम करेंगे. एंड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं हम, छोटे छोटे स्टेप्स. और फिर वो जब वो अचीव कर लेती है देन यू फील गुड कि हाँ ये कर रही है, मतलब इतना ये कर सकती है, अभी इससे नेक्स्ट हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये. सो दैट वे हम गए थे. बट ऑन अ रेगुलर बेसिस हैविंग थेरेपी, मतलब आपका लाइफ कैसे चेंज हुआ आफ्टर, मतलब द डायग्नोसिस? एवरी डे, मतलब 6 महीने के बच्चे के साथ तो खेलना रहता है, सडनली ये सारे विजिट्स इतना, मतलब शेड्यूल्ड वाइज अपॉइंटमेंट वाइज करना रहता है. सी विल आई टेल यू. जब वो पैदा हुई थी ना, बैक ऑफ द माइंड ये तो सेट था कि यस हमें इसके पीछे रहना है. सो आई मीन हम लोग खुद थेरेपी देते हैं, सो वी नो कि क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे गाइड करना है. तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर ही थे. इवन हम्म. नाउ ऑल्सो आर प्रिपेयर. वी आर नॉट लाइक कि ठीक है उसके साथ हम लोग मतलब जैसे रेगुलर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे. नो, इट इज़ नॉट दैट वे. हमें पता था कि उसको थेरेपी के लिए लेके जाना है, उसके साथ रहना है. एक एक टाइम निकालना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा. हम्म. फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो भी थेरेपीज के लिए जाते थे, जो भी उनके स्केड्यूल्स होते थे, यस वी नीड टू अटेंड दैट. सो इट वाज देयर एट द बैक ऑफ द माइंड. सो हम लोग पहले से रेडी थे उस चीज़ के लिए. हम्म. मतलब हमने अपना लाइफस्टाइल उसके हिसाब से मॉडिफाई मॉडिफाई किया किए है. हैं. क्या था? हाँ. तो इट वाज नॉट लाइक अ सरप्राइज और अ शॉक कि अरे ऐसा, ये मतलब अभी ऐसा कैसे हो गया, ये टाइम मेरे ने सोचा था, तो वो मतलब डेफिनेटली आपने वो ऑलरेडी सोच के रखा था बेसिकली. हाँ. यस. ऐसे कभी एक आध बार यू फील कि जब लाइक दिशिता इज देयर, धृति इज देयर, यू फील कि अगर धृति भी नॉर्मल रहती थी तो ये इवनिंग आवर्स जो हमारा थेरेपी सेंटर्स में डेली अभी लाइक 4 to 7 इज एट थेरेपी, वो शायद हम कहीं बाहर गार्डन में खेल रहे होते या कुछ अलग हाँ. तरीके से स्पेंड करते थे. बट अभी इट्स लाइक पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल नाउ. एवरी डे लाइक वी गो टू ऑफिस, वी गो टू थेरेपी पोस्ट ऑफिस. करेक्ट. करेक्ट. एंड आई थिंक ये डायग्नोसिस में इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू कीप दैट, क्योंकि फिर वो इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन बोन साइज, इंक्रीज इन मसल लेंथ के साथ ये करते रहना जरूरी है. क्योंकि हम एज प्रोफेशनल्स हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई बच्चे जिसके समझिए कुछ कुछ माइलस्टोन्स आ जाते हैं, देन हम ही कन्विंस नहीं कर पाते पेरेंट्स को कि आपको क्यों करना है, क्योंकि उनके लिए इट इज अ बिग फाइनेंशियल डिसीजन दे हैड टू टेक वो डायग्नोसिस के बाद, जो ऑब्वियसली उन्होंने सोचा तो नहीं था. काफी सारे होते हैं पेरेंट्स जो फिर डिसकंटिन्यू होते हैं, फिर टीनेज में वापस कॉन्ट्रैक्चर वगैरह के साथ वो लेके वापस आते आते हैं. हैं. सो आई थिंक कंटिन्यूइंग, और आप जो बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में जगह बनाना, दैट इज मेंटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर. दैट मीन्स यू हैव टू, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देखो. You don't have any option, so ऑप्शन you have to एब्सोल्युटली. make it's a part of your lifestyle. And ऐसा नहीं है कि उसका वॉकिंग आ गया तो मुझे छोड़ना है, because maintenance therapy will be there lifelong. करेक्ट. तो आई ये थिंक दिस. एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. डायग्नोसिस तो है ही, बट इट इज हाँ. गोइंग टू बी देयर इन सम और द अदर फ्रॉम फॉर्म टिल शी इज देयर. आई जेन्युइनली फील, क्योंकि आपने पढ़ा है आपका ये, आई थिंक द एक्सेप्ट नॉट द एक्सेप्टेंस, मे बी अंडरस्टैंडिंग की दैट व्हाट इज मेंटेनेंस थेरेपी. बहुत, मतलब इट इज वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस फ्रॉम यू, क्योंकि है पर्सनली वाइल टॉकिंग टू पेरेंट्स एंड ऑल, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको स्पेशली टीनेज ईयर्स में टू गेट देम टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट कि आपने माइलस्टोन्स अचीव कर लिया, बच्चा भी चलता है. क्योंकि आई वर्क विद अ पीडियाट्रिक फिजियो, और उनके पास देखा है
जो माइलस्टोन्स अचीव करके बच्चे व्हीलचेयर में उनके पास वापस आते हैं, एंड आई हैव सीन हर द पीडियाट्रिक फिजियो इन टीयर्स कि आपको कितना समझाया था और आप तभी आप छोड़ के गए थे. सो आई अंडरस्टैंड वेर यू आर कमिंग फ्रॉम. So anything, just continuing with that question, anything that you took for granted with a neurotypical child and then you had to relearn the processes for धृति विद दिशिता, जो आपने जैसे आपने बोले गार्डन टाइम, इट वुड बी सो टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो टाइम हम कहीं बाहर जाएंगे ऐसे, मे बी स्कूल और समथिंग. ग्रांटेड में लाइक है कुछ कुछ टाइम पे कि लाइक अगर नॉर्मल रहता तो अलग रहता. अभी धृति हाँ, है तो कहीं घूमने भी जाना है तो वी हैव टू सी कि धृति के लिए क्या अवेलेबल फूड है वहाँ. सपोज इट इज एब्सोल्युटली. होटले. और या फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं पे ट्रैकिंग या ऐसी कोई जगह पे नहीं जाए जहां हम उसका स्ट्रोलर आराम से लेके जा सके. सो एक्सेसिबिलिटी बेस, थिंकिंग अबाउट बेसिक एक्सेसिबिलिटी जो हम अपने सीनियर सिटीजन सपोज पेरेंट्स के लिए सोचते हैं वैसे. वैसे हाँ, मतलब इवन फॉर दैट मैटर हमें अगर अपने घर भी जाना है तो हाँ, हम ट्रेन का प्लानिंग भी वैसा करते हैं कि उसको टाइम मिलना चाहिए हाँ, रेस्ट करने के लिए. उसका स्लीप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. या फिर हमें वी हैव टू एब्सोल्युटली. कैरी हर स्ट्रोलर, हर पॉटी ट्रेनिंग सीट, क्योंकि वो बाहर कहीं कंफर्टेबल नहीं रहती है. एब्सोल्युटली. सो मॉडिफिकेशंस हैं. मतलब यहाँ से इवन आई इफ हैव टू ट्रैवल फॉर लाइक 2-3 hours जर्नी ऑल्सो, इफ हैव टू गो टू हाँ, पुणे ऑल्सो, देन ऑल्सो हैव टू कैरी हर थिंग्स. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज. लाइक अभी वो ऐसा हो गया कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर, ये भी आदत पड़ गई है. अब दिस आदत इज पड़ दिस गई इज है. रूटीन लाइक. एक यस. आदत पड़ गई है. और एक ये भी बोलना चाहिए कि और क्या हो सकता है आगे जाके मॉडिफिकेशन, उसके लिए भी वी आर ओपन. अभी आगे जाके इसको शायद व्हीलचेयर लगेगा क्योंकि स्ट्रोलर के लिए छोटी हो रही है. हाँ, हाँ, वो सो खुद बड़ी हो रही है ना. शी इज ग्रोइंग अप. एब्सोल्युटली. यस, यस, एब्सोल्युटली. ओके. सो हम लोग जो भी फिजियो की बात कर रहे थे, एंड हाउ यू हैव टू मेक जगह इन योर लाइफ फॉर रेगुलर फिजियो एंड ओटी. टेल मी अबाउट द होम प्रोग्राम स्पेशली, क्योंकि आप दोनों प्रोफेशनल्स हैं. रियलिस्टिक व्यू से बताइए कि कितना एक्चुअली घर पे हो पाता है एंड कितना एज प्रोफेशनल समटाइम्स वी टेल पेरेंट्स बट नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है इतना करना घर पे, क्योंकि आपने फॉलो अप किया है उतना उसके लिए घर पे. सी कैसा है कि अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू रिमेन डेडिकेटेड. हाँ, अगर आपका डेडिकेशन में कहीं पर कुछ कम पड़ जाता है, देन यस, डेफिनेटली कम पड़ जाता है. सो शी गोज फॉर फिजियोथेरेपी, शी गोज फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी. घर पे रिपीटेशंस बहुत कम हो पाता है. बट वी सी कि इट इज़ नॉट लाइक कि हम बैठ के 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं. नो, इट इज़ नॉट दैट वे. उसको उठा के लेके जा रहे हैं, उसको चला रहे हैं, सी उसको खिला रहे हैं. सो देन एंड देयर हम लोग उसका जो भी थेरेपी में जो भी उसने सीखा हुआ है उसको वहीं पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं. इट इज नॉट लाइक यू हैव टू सिट फॉर 1 hour एंड देन यू हैव टू ट्रेन हर. नो. ओके. अभी वो बैठी है, उसको उसको लगी है पानी पीना है, तो चलो विल गेट अप, विल स्टार्ट वॉकिंग, विल गो जहाँ पर पानी है, एंड देन विल ड्रिंक वाटर एंड देन विल कम बैक ऑल्सो. सो दैट वे इट इज नॉट लाइक कि चलो आपको वॉकिंग करवाना है तो मुझे आपको हाफ एन आवर वॉकिंग कराना है. नो, इट इज नॉट दैट वे. एक 2 मिनट्स का 3 मिनट्स का मैंने उसको वॉकिंग करा दिया. नाउ यू सिट स्ट्रेट एंड दैट, आई मीन दैट इज हाउ इट इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड. क्योंकि उसको भी सिखाया जा रहा है कि आपको सीधा बैठना है. ट्राई टू सिट एज मच स्ट्रेट एज यू कैन. तो हम लोग उसको बोलते रहते हैं कि व्हेनेवर शी इज वाचिंग टीवी और शी इज डूइंग समथिंग while eating also, he has a habit of पूरा अपने आप को नीचे गिरा देती है. सो कंटिन्यूसली कीप ऑन टेलिंग कि सीधा बैठो, आपको फलाना फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला था ना सीधा बैठने के लिए, कैसा बोला था उन्होंने सीधा. सो दैट इज हाउ वी इनकॉर्पोरेट. इट इज नॉट लाइक कि हम लोग उसको लेके बैठते हैं कुछ थेरेपी सेशन से. नो, इट इज नॉट दैट वे. लाइक फॉर स्टैंडिंग हमको कराना है तो मैं क्या करती हूँ, उसको शूज पहना के गैलरी में खड़ा कर देती हूँ. द एल्डर वन इज प्लेइंग बैडमिंटन नीचे, तो देखो दीदी को बैडमिंटन खेलते हुए. सो दैट इज सो मोटिवेटिंग. दैट इज सो मोटिवेटिंग, अगर नीचे दीदी खेल रही है तो. सो अभी उसको ये भी होता है कि अगर तू जल्दी स्टैंडिंग करेगी, वॉकिंग करेगी, तो तू भी बैडमिंटन खेलने जाएगी. सो मतलब हमें वो वेज फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये उसको, मतलब अभी धृति के केस में ऐसा है कि शी एंजॉयज डूइंग थेरेपी बिकॉज उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि थेरेपी इज फॉर हर एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ. करेक्ट. सो अगर मैं लेट हूँ ऑफिस से, शील कॉल, मम्मा आप कब आ रहे हो, आज कौन सी थेरेपी है, आज कौन सा मशीन है. So, like Saturdays we don't go, so she's like आज सैटरडे, आज कोई थेरेपी नहीं जाना है. So
she's mentally prepared, then she'll take a nap in the afternoon. अच्छा. सो हमारा मतलब इट इज ओरिएंटेड दैट वे. अभी घर पे भी छोटी छोटी चीजों में, नॉट फॉर फिजियो, इवन फॉर मतलब अदर थिंग ऑल्सो, लाइक स्पीच के हिसाब से, ड्रूलिंग के लिए, पोस्चर हाँ. मेंटेनेंस के लिए, तो धृति अपना मुंह बंद रखो, जैसे थूकी बन रहा है करके अंदर लो. धृति, हाँ. दीदी कैसे बैठी है, धृति झुक के बैठी है क्या दीदी. सो दैट वे कंटिन्यूस. इवन दिशिता विल टेल हर. करेक्ट. एवरीबडी जो है घर में वो उसके साथ में उसी तरीके से है कि वर्बल उसको देते रहते हैं. ओके. सो इट इज So, मोटिवेटिंग फॉर हर. आप जो बोल रहे हो ना कि अगर वो खड़ी होती है बैडमिंटन खेलेगी तो वो उसके लिए भी मोटिवेटिंग है कि इट इज फॉर मी, मेरे मेरे लिए है, दैट आई एम एबल टू डू इट. और फिर कभी जैसे वीकेंड्स है, सुबह ऑफिस नहीं है, तो मॉर्निंग आवर्स में वो जो जो स्ट्रेचिंग है या वो है, जैसे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का एक्सरसाइज हम हाँ. करते हैं. तो वो करने के बाद में उसको ये रहेगा, तो अगर इसमें खड़े रहेगी बॉल को सपोर्ट रख के इतने काउंट्स तक, तो आई विल क्लिक का वीडियो एंड शेयर इट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, सो देन शी पेरेंट. इज हैप्पी, शील डू. सो दैट वे थोड़ा सा पटाओ के and हाँ, थोड़ा मोटिवेट करके जिसमें उसको मोटिवेट वो लगे कि अरे आई एम डूइंग, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है. एंड वन मोर थिंग, जैसे देर आर पीपल जो मतलब अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स वो और भी कुछ लोग हैं, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उसकी बुआ हो गई, उसकी मासी होगी, इनकी बहुत सुनती है, उसकी मामी उनकी बहुत सुनती है. सो समटाइम्स वी टेक देयर हेल्प ऑल्सो. हाँ. एंड इट इज लाइक कि एवरीवन इन इन आवर फैमिली दे आर डूइंग, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो धृति के लिए उन लोग भी हेल्प कर रहे हैं. इन supportive सम very और द अदर वे दे आर सपोर्टिंग. करेक्ट. सो एवरीवन इज आफ्टर धृति कि हाउ उसको किस तरह से हम लोग आने वाले समय में उसको काबिल बनाए. करेक्ट. काबिल, इंडिपेंडेंट, ताकि वो मतलब वो खुद पे ही ये हो सके, बेसिकली उसका डिपेंडेंस जो है दूसरों पे कम हो, और खुद पे प्राइड भी होना चाहिए ना. सो वो प्राइड भी आई थिंक वो ये भी बन रहा है. एनी एनी मतलब कोई स्ट्रगल का एपिसोड आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वेदर इट वाज विद स्कूल, वेदर इट इज while ट्रैवलिंग समवेयर आपको कुछ बताया गया, वेदर बहुत ज्यादा आपको एडवोकेसी करना पड़ा जहाँ पे इट वाज एक्सपेक्टेड आपको स्ट्रगल हेल्प. में, आई वुड से स्ट्रगल में ट्रैवलिंग के टाइम पे एयरपोर्ट का एक वो है, देन दैट टाइम व्हील चेयर वाला इशू था. इट लाइक हमने अप्लाई किया बट वो एक्सेसिबल होना, टाइम पे आना करेक्ट. और वहां तक पूरा प्रोवाइड करना. आई वाज ट्रैवलिंग अलोन विद बोथ द किड्स, सो एंड ओके. धृति वाज नॉट वेल दैट टाइम, सो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था वो दैट ओके. एपिसोड. मतलब दैट टाइम लिटरली एक ही. देयर इज वन जस्ट एपिसोड कि जहाँ पर इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट, आई वाजंट देयर व्हिल दे आर ट्रैवलिंग, सो थोड़ा सा हाँ. एयरपोर्ट में दे हैड टू फेस सर्टेन डिफिकल्टी. दैट वाज जस्ट वन एपिसोड. एंड ओके. उसके बाद में अभी ट्रेन वगैरह में इट इज लाइक कि अभी लिफ्ट है और एक्सक्लेरेटर है जहां जहां, सो देन इट्स ओके. बट जहां नहीं है वहां इट इज डिफिकल्ट कि उसको उठा के ही लेके जाना पड़ता है. करेक्ट. सो देन इट बिकम्स अ लेटर कंसर्न जब वो बड़ी होती है होती है. बेसिकली, और आप उठा नहीं सकते हैं उसको क्योंकि आपके हमारे खुद के स्पाइन के इश्यूज होते हैं फिर. सो वो सोचने वाली बेसिकली एक्सेसिबिलिटी. व्हाट अबाउट स्कूल? टेल मी अबाउट हर स्कूल. स्कूल का इट वाज दिशिता स्कूल, बेसिकली इट्स अ प्री स्कूल नियर बाय. ओके. सो इनिशियली मतलब हम लोग वी वर नॉट इनटू इट कि हम डालेंगे स्कूल में. आवर मेन गोल वाज कि उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है. तो बट हमने जिनसे गाइडेंस लिया था फॉर स्पीच, she's Mrs. Jyoti from Chennai. She had worked with Spastic Society ओके. of Chennai, Tamil Nadu. ओके. She has a lot of experience. Her CP kids are doing very well. Some or the other place they are placed in ओके. good. So they've written books also. So she was the one behind us to push कि इसको स्कूल में डालो प्रिया. She will sit, she will listen. You don't have to bother about it. And the other one is the pediatric neurologist who were like, you have to fight for it. She can. She's not supposed to be going into a special school. ओके. वेरी So गुड. see, as a parent, as a professional, we were there. But then प्रिंसिपल को कन्विंस करना, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि आपको आपके बच्चे को डालना है रेगुलर स्कूल में, इसलिए आप तो बोलोगे. सो हाँ. देन वी हैड दीज टू सीनियर पीपल्स रेफरेंसेस सेइंग दैट कि उन्होंने ही हमें बोला है कि इसको स्पेशल स्कूल में नहीं, इसको रेगुलर स्कूल की जरूरत है, बिकॉज शी इज अ एबल माइंड इन अ डिसेबल्ड बॉडी. सो एब्सोल्युटली. उस कंसेप्ट से वी हैव टू गो. तो वहां पर सी अभी ये जो स्कूल में हम भेज रहे हैं, द टीचर्स एंड प्रिंसिपल आर ऑल सपोर्टिव. बट ऑफ कोर्स
we send our own caretaker because they don't Hmm. have that much facility कि वो Hmm. पर्सनली धृति का सब केयर कर पाएंगे. सो आवर केयरटेकर गोज लाइक उसको फीडिंग के लिए, उसको टॉयलेट के लिए ले जाना है, कुछ करना है, या ऊपर से नीचे स्टेयरकेस उतारना है, ये सब मदद वो करते हैं. धृति इज मोर ऑफ ओरल किड्स, वो लिसन सुन के सब जवाब देती है. राइटिंग इज अ इशू. सो फिर भी हम जब राइटिंग का पार्ट कराते हैं तो हाथ पकड़ के कराते हैं, बट देन प्रिंसिपल इज लाइक कि वी वोंट डू एनालिसिस ऑन राइटिंग पार्ट. सो आई सेड Okay. ओके. अभी हमने जब उनसे कन्विंस करने का बात हुआ तो वी वर लाइक कि हम स्कूल में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें उससे सोशलाइजेशन चाहिए, नॉट फॉर Absolutely. एजुकेशन एज सच. Hmm. So we don't mind putting her in playgroup nursery. We started with playgroup only. Hmm. But like 6 months के बाद उन्होंने like कितने एज में वो गई? 5 years में she started schooling, no? हाँ. So 5 years में playgroup में डाला था, and then Hmm. उसके बाद वो nursery ऐसे करते करते अभी she is 8 and she is in UKG. Okay. एंड शी इज एंजॉइंग, मतलब लर्निंग ऑल्सो, एंड एज अ कॉन्सेप्ट जैसा आपने बोला मुझे थेरेपी जाना है, ऐसा है मुझे स्कूल जाना है, वैसा Yes. वैसा लेवल ऑफ मोटिवेशन है. बोलिए ना सर. She doesn't Can want to you miss any day. can you imagine? We are not aware, but one fine day she came and she started narrating Hanuman Chalisa. Certain, पूरा तो नहीं, but हाँ. I mean, Two half, paragraphs. two paragraph. I think half of the Hanuman Chalisa she is able to narrate. सुन सुन के she has learned and she was saying. तो then I asked कि कहाँ सीखा? तो स्कूल में, because they were preparing for some रामनवमी का thing, मतलब हाँ. हाँ. हाँ, even like national anthem and all, क्योंकि घर में कौन करता है, but like हम लोग कभी Absolutely. मूवी जाते हैं तो she'll stand up and she'll sing वहां पर थिएटर में. Correct. She sings with Dishita हाँ. and she tries to sing with Dishita also. Even अभी ये जो recent गाने हैं ना, कौन सा है? She say कि मेरा गाना लगाओ रेडियो पे. She is fond of listening to radio. तू है तो दिल धड़कता है. She हाँ. will try to say all the words. उसको सब याद है कि नेक्स्ट क्या वर्ड आएगा, उसके बाद क्या वर्ड क्या आएगा. वर्ड आएगा. करेक्ट. So she is that way bright. वो सुन के बहुत सारे चीजों को याद रख लेती है. हाँ, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना कि माइंड तो पूरा ठीक है, और वो एक वो जिद भी है कि मुझे एक्सप्रेस करना है, बेसिक वो जो एक एक्सप्रेशन का जो इच्छा है, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली गुड. मतलब एटलीस्ट वो खुद को एक्सप्रेस करके बता सकती है. दैट इज वेरी गुड. बट इन जैसे आप बोल रहे थे, डजंट वांट टू मिस अ डे इन स्कूल, इतना इतना. Yes. लाइक ये वेकेशन का पीरियड हमारा इतना मुश्किल से गया बिकॉज द एल्डर वन स्कूल स्टार्टेड ऑन सेकेंड. हमारा ऑफिस चालू हो गया एंड शी वाज द वन हु वाज देयर बिकॉज उसका 12 से चालू होना था. तो मेरा स्कूल किस दिन चालू होगा, मेरा ऑटो कब आएगा, एवरी डे शी यूज्ड टू आस्क. एंड शी सुपर एक्साइटेड जाने के बाद. अभी certain things at school level what we are finding difficult ऐसा है कि see in every school there is no resource teacher. If at all there are, then they are trained for particularly either hearing impaired or autism. So for CP, मतलब स्पेशली अभी छत्रपति संभाजी नगर में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि स्पेशल एजुकेटर फॉर सीपी चिल्ड्रन है ही नहीं. तो दैट वे वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. लाइक स्कूल में अभी वो सुन के कर रही है बराबर है, लेकिन उसके लिए और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि वो और अच्छा लर्न करे, ये एक बैरियर है. क्योंकि कैपेसिटी है हायर और अच्छा लर्न करने का. शी हैज द कैपेसिटी. अब दूसरा इशू ये हो जाता है कि लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हु इज गोइंग टू टेक केयर, will they allow the caretaker in the class, then that will be a problem. So next year के लिए it's like difficult. I don't know what we are going to do, but मतलब एक बेस मैंने ये सोच के रखा है कि we are planning for NIOS. And now since this was a preschool, so we have to shift in some different schools. So we are looking where the faculty is little conducive कि अगर धृति को लेते हैं, धृति does a schooling there with NIOS support. So then we are thinking of that. But again accessibility का भी problem है. हर स्कूल में there is staircase, ऊपर नीचे है. So then that's a problem है ही. But we'll find a way out. हाँ, we will find some ways. नहीं, बैरियर्स तो मतलब आप कुछ भी देख लीजिए, यू विल सी दैट इट इज नॉट बिल्ट फॉर एनी डिफरेंसेस. No.
सो अब ये है कि ना हर स्पीच स्कूल जाने से भी ऑब्वियसली दूसरे फ्रेंड्स के साथ बातें करना, ये करना, एंड हर क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हर स्पीच. मतलब इनिशियली व्हेन शी जॉइंड स्कूल तो सिर्फ प्रिंसिपल ही थी जो समझती थी कि धृति क्या बोल रही है. लेटर ऑन थोड़े क्लास टीचर्स समझने लगे. अब ऐसा है कि उसके क्लासमेट्स भी समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. एंड अच्छा पार्ट ये है स्कूल में कि दे मतलब उसको सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. मोर इम्पोर्टेंट इज कि उसके जो फ्रेंड्स हैं क्लास में, दे ऑल्सो वांट कि दिसिता शुड टेक पार्ट, धृति. सॉरी धृति शुड टेक पार्ट, हाँ. है ना. इट इज लाइक थोड़ा सा जूनियर क्लास में एक टीवी रूम होता है, ऊपर था स्टेयर केस में. सो दिस चिल्ड्रन आर मोबाइल, सो दे गो स्टेयर केस में चले जाते हैं, उन लोग जाके बैठते हैं ऑडियो विजुअल. एंड दे स्विच ऑन. टीवी को स्विच ऑन तब तक नहीं करेंगे जब तक धृति क्लास में एंटर नहीं करती है. द मोमेंट धृति एंटर्स इनटू द क्लास, क्लैप करेंगे एंड देन दे विल स्विच इट ऑन. सो दे वेट फॉर धृति टू कम टू द क्लासरूम एंड देन दे स्विच ऑन द टीवी. तो सो मतलब अभी धृति को क्लास से सपोर्ट मिलता है, हाँ. क्लासमेट से सो सपोर्ट मेरा मिलता है. एक्चुअली सोचना ऐसा है कि द किड्स डोंट फील दैट डिफरेंस, द पेरेंट्स और द टीचर्स क्रिएटेड. क्रिएटेड, एंड दैट टू इट स्टार्ट्स विजुअली. जैसे आपने बोला, इट स्टार्ट्स विजुअली कि अरे आप पेरेंट्स हो, आपको चाहिए वो रेगुलर स्कूल में आनी चाहिए. द अंडरस्टैंडिंग दैट इवन विद डिफरेंसेस द चाइल्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. कुछ भी, देर इज नथिंग. इट इज द पेरेंट एंड द अडल्ट कॉम्पिटिटिवनेस, आई थिंक सो. और कुछ नहीं है कि क्यों एक को डिनाई करना है वो चीजें. बेसिकली इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली. एंड बच्चों से जो सीखने को मिलता है ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि दे विल नॉट स्विच ऑन द टीवी टिल धृति कम, बहुत बड़ी बात है. मतलब बच्चे अगर उतना काइंडनेस दिखा सकते हैं, दैट इज अ लॉट. काइंडनेस, फेयरनेस, अ लॉट, बहुत बहुत बड़ी बात है. सो ये है. इवन लाइक टीचर्स एंड प्रिंसिपल ने देखा कि शी हैज इवॉल्व्ड अ लॉट आफ्टर स्कूलिंग. दे देमसेल्फ वर हाँ, टेलिंग कि धृति अभी काफी समझ के आंसर करती है. लाइक हाँ. उससे ओके. क्वेश्चन पूछो तो फोनिक्स वगैरह में भी इफ दे टेल द लेटर्स, धृति BAT क्या है, सो शी विल से इमीडिएटली बैट. Any phonic random from anywhere you pick up, you tell her, she will tell the word. So that is there. Abhi right now we are facing issues with respect to reading. So we are working on it now. ओके. सो इसी में जैसे आप बोल रहे, इफ देर इज अ रिसोर्स टीचर विथ लिटिल ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड, कितना हेल्प yes. मिलेगा अपने को. बोथ एज पेरेंट्स एज वेल एज, साइंस तो समझ में आता है, लेकिन बच्चे तक वो लेके जाके बच्चे को पढ़ाना इज द ट्रिक अल्टीमेट. सी अभी एक चीज ये हो जाती है कि एज अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड हम लोग को पता है कि इसको स्पेशल एजुकेटर ऐसा वाला लगेगा, हाँ. इसको ऐसा ये लगेगा. पर यहाँ है नहीं अवेलेबल. और दूसरा वो चीज इनकॉर्पोरेट कराना इज वेरी डिफिकल्ट. जल्दी कोई मानता नहीं बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू पे दैट न्यू पर्सन. करेक्ट. कौन खर्चा उठाएगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. इट इज नॉट कि सिर्फ रिसोर्स टीचर चाहिए. अभी रिसोर्स टीचर को पे करने के लिए भी बोर्ड मेंबर्स एब्सोल्युटली. को भी मानना चाहिए. एंड दे नो कि ये रूल है, स्पेशल बच्चे भी होना चाहिए, किड्स होना चाहिए क्लास में. बट बहुत इजीली दे आर नॉट रेडीली एक्सेप्टिंग इट. एक्सेप्टेंस नहीं है थोड़ा सा. क्योंकि एट द एंड एवरीबडी इज बिहाइंड दैट क्रीमी लेयर की 10th में हमारा रिजल्ट कितना अच्छा हो. एवरीबडी. हाँ, हाँ, वो स्टेटिस्टिक्स नहीं जाना चाहिए. सो वो. हाँ. तो इट इज लाइक कि हाँ हम ऑन पेपर तो बताते हैं इंक्लूजन है. लाइक अभी मैंने एल्डर वाले का स्कूल चेंज किया एंड वी जस्ट हैड अ टॉक. मतलब वी डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट धृति एनीवेयर. वेरी जहाँ पे गुड. भी हमें लगा कि हमें करना है तो वी जस्ट इंट्रोड्यूस कि दिशिता हैज अ यंगर वन एंड शी हैज गॉट सच प्रॉब्लम करना. सो दे वर लाइक कि वी विल हैव टू सी कि हाउ मच मोबाइल शी इज. हाँ. क्योंकि स्टेयरकेस है मैम हमारे स्कूल में. वी डोंट हैव अ लिफ्ट. हम्म. सो वेरी स्मार्टली इट इज नो ओनली ना. सो वेरी दैट स्मार्टली प्रिपेयरिंग द पेरेंट्स की हमारे तरफ से क्या आंसर होने वाला है, ताकि पेरेंट्स आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज. वो ऐसा प्रिपरेशन है. इट इज. ओके. एनीथिंग, मतलब व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स फॉर बोथ योर चिल्ड्रन. आपने कवर किया, आपने काफी कुछ कवर किया, बट इन जनरल दोनों के लिए फ्यूचर गोल्स. एंड आप दोनों का थोड़ा सा मेंटल हेल्थ विथ टू किड्स, योर वर्क विथ दीज स्ट्रगल्स, थोड़ा सा. We are preparing our elder daughter
दिशिता कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ धृति। हम लोग तो हैं, वी आर देयर एज ए पेरेंट, बट जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे सो इट इज़ यू हु हैव टू टेक केयर। सो हम लोग उसी तरह से उसको उसके दिमाग में वो चीज़ रख रहे हैं, बता रहे हैं किसी धृति विल बी रिक्वायरिंग ऑल दिस थिंग्स। सो आप कहीं पर भी रहो, आपको धृति की तरफ नजर रखना है। ओके। हाँ, मतलब वेरी उसमें ऐसा नहीं है कि आप ही को करना है। वी आर मेकिंग धृति इंडिपेंडेंट, बट एज एन एल्डर सिस्टर यू विल हैव टू टेक केयर आफ्टर अस, ऐसा। बिकॉज उसको स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इट विल बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके And she is that way very very supportive, very helpful। बहुत सारी जगह में बहुत सारी चीजें धृति को दिशिता ने सिखाया है, एंड she'll say दीदी ने सिखाया। एंड that way even like ये दोनों अभी आपस में झगड़ा करते हैं, मारना, बाल खींचना, तो वो झगड़ा भी हो रहा है। सो हमको अच्छा लगता है कि ठीक है वो मोबाइल नहीं है, लेकिन वो बैठे बैठे भी उतना झगड़ा कर लेते हैं। So, तो दैट इज गुड, दैट इज गुड। मतलब ये बॉन्डिंग नहीं होगा तो बाद में जो आप बोल रहे हो ना, हैविंग दैट टाई कि अरे मेरी बहन है, मेरी मम्मी पापा के बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग एक्सरसाइज हुआ ना, झगड़ा करना, बाल खींचना। और वो चुगली भी करती है अपनी बड़ी दीदी की। हाँ, दीदी टीवी देख रही थी, आज दीदी लैपटॉप देख रही थी। मतलब जो गलत उसको पता है कि इस चीज के लिए डांट खाती है दीदी, वो शील इमीडिएटली टेल आने के बाद, आज क्या हुआ मम्मा, ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। ओके ओके। एंड शी हैज अ हैबिट, लाइक उसको हमने ऐसे डेवलप कराया है, लाइक स्कूल से आती थी तो आज क्या हुआ स्कूल में, बिकॉज हमको तो समझ में आ जाता है कि स्कूल में क्या हुआ था, सो हम उसके मुझसे पूछते थे। सो अभी 2-3 साल के बाद अब ये स्टेटस है कि हम आते तो आज ऑफिस में क्या हुआ पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी स्कूल में क्या हुआ। गुड। तो मतलब दो टू वे गप्पा, टू वे कॉन्वर्सेशन में बहुत, मतलब सोशल इसमें बहुत अच्छा लगता है फिर उसको। ये है। सो है अभी लाइक फ्यूचर का गोल ऐसा है कि फॉर धृति तो इट इज लाइक कितना इंडिपेंडेंट उसको हम बना सकते हैं, या विथ मिनिमल सपोर्ट वॉकिंग का, और अगर एनआईएस के थ्रू वो कितना कर सकते हैं, क्योंकि सर्टन थिंग्स एक्चुअली हैज कम विद अ सरप्राइज। हमको नहीं, वी डिडंट एक्सपेक्ट कि धृति वुड लर्न इतना अच्छे से, और जब वो कर रही है तो अभी अपने एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जाते हैं, जब बच्चा कर रहा है तो और करा और करा। सो अभी तो प्लान है कि एनआईएस के थ्रू एजुकेशन जितना हो सके, बहुत ज्यादा बाउंड नहीं रखना है उसको, शी शुड एंजॉय। थेरेपी कंटिन्यू रहे, स्पीच क्लैरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और एजुकेशन ये है सेल्फ हेल्प स्किल के ऊपर। एजुकेशन भी सिर्फ आवर कंसर्न है कि वो इतना सीख जाए कि शी विल बी एबल टू हैंडल द दुनिया को हैंडल कर सके वो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे कुछ फाइनेंस है या कहीं कोई उससे गलत स्टैंप ले रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे सब चीजें पता होना कि यहाँ करना है या नहीं करना है, या यहाँ पर कंसर्न को फोन करना है, ऐसे कुछ। जैसा आपने बोला कि लिटरेसी है तो पढ़ के समझना चाहिए कि मेरा साइन किस पे लिया जा रहा है, मेरा कंसेंट किस चीज के लिए लिया जा रहा है। करेक्ट। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। फॉर दिशिता, फॉर दिशिता तो इट इज लाइक वी आर फ्री कि तुझे जो चॉइस है पढ़ना करना, बट उसको ये है कि यू हैव टू हैव समथिंग, मतलब अपना कहीं तुम्हें बेस बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज मतलब जैसे होता है ना कि जॉब करने के लिए यू हैव टू स्टडी, तो वैसे। एंड जैसे वो एंजॉय करती थी, मतलब लव्स टू लर्न लैंग्वेजेस, तो वो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको। एंड थोड़ा उसको ये बताया हुआ है कि अभी 10th तक मैथ्स जरूरी है, साइंस बैकग्राउंड जरूरी है, तो वो हमने बताया हुआ है। बाकी उसको ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं करा है। इफ शी वांट्स टू गो अब्रॉड एंड लर्न और व्हाटएवर, इफ शी वांट्स टू लर्न, तो वी आर देयर। मतलब वी है, मैंने या इनने कभी उसको ये नहीं बोला कि यार तू बाहर नहीं जा सकती क्योंकि धृति है तेरे साथ। करेक्ट। ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, वो कई बार फॉर ग्रांटेड हो जाती है, जब जैसे धृति की तबीयत खराब है तो हमें उससे ज्यादा केयर टेकिंग करनी पड़ती है, और दिशिता आल्सो नीड्स अस दैट टाइम, बट देन वी हैव टू टेल कि दिशिता यू हैव टू अंडरस्टैंड धृति रिक्वायर्स मोर केयर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप तो समझदार हो, आप तो बता देते हो कि आपको क्या तकलीफ है, लेकिन धृति नहीं बता पाती है, इसलिए उसके साथ ज्यादा हमें करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम वी मेक श्योर कि जब
धृति के पास से टाइम हट गया है तो वो टाइम हम दिशिता के साथ यूटिलाइज करें। मतलब करेक्ट। उसको कहीं पे ये फील नहीं होना चाहिए कि धृति के कारण मुझे टाइम नहीं मिला नेग्लेक्ट किया बचपन जा में। रहा है, हाँ, मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये करेक्ट करेक्ट। बहुत ज्यादा मैंने देखा है पहले के सिबलिंग्स में। हाँ Like if the elder, especially if there is younger one, हाँ बाद में हुआ स्पेशल चाइल्ड और बाद बड़ा वाला नॉर्मल है तो फिर बड़े वाले को नेग्लेक्ट हुआ क्योंकि छोटे वाले की तरफ ध्यान चला गया। करेक्ट। तो वो नहीं होना चाहिए करके हम कोशिश करते हैं कि ओके बाकी सारा टाइम मस्ती मजाक या जो उसके बॉन्ड्स है, घूमना है, ये करना है, करें। और मेंटल हेल्थ को लेके ऐसा हो जाता है कभी कभी यू नो कि हम सी फॉर मी आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो एनीवेज इट इज केओटिक। लाइक जब जाते बराबर पेशेंट हियरिंग इम्पेयर्ड, ऊपर से गवर्नमेंट सेटअप एंड आई एम ऑल अलोन, आई डोंट हैव एनी असिस्टेंस इन माय डिपार्टमेंट। सो आने के बाद एंड इफ घर में कुछ डिस्टरबेंसेस है यू नो, तब मतलब हाँ जैसे बारिश हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, थेरेपी नहीं जा पा रहे रेगुलरली, बहुत दिनों का मिस हो गया, तो देन वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। हाँ होता है हर, मैं बोलूंगी हर महीने में एक पीरियड आता है जब आपको लगता है कि टू गो इनटू डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन एग्जैक्टली बट कुछ कुछ चीजों से फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन हाँ होता हाँ, कि तो थिंग्स वो आर नॉट गोइंग एज टू प्लान। है। एज प्लान्ड, हाँ, थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान्ड। एज प्लान्ड। बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती है ना, जैसे हमने एफओ बना के लाए नया, बाहर हाँ से बना है, यहाँ नहीं अवेलेबल था, आ गया बन के, अब टाइट है, अब ढीला करने के लिए वापस कौन भेजेगा बाहर, हाँ। तो कहाँ से अरेंज करूं कि इसको कोई मतलब गलत तरीके से मॉडिफिकेशन ना हो, प्रॉपर ही हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं डेली लाइफ में फेस करने के लिए, बट जैसे जैसे टाइम के साथ वो हो जाता है, बट होता है बट दोज आर नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे अभी हम्म इनका ए जो बंद करा, इट वाज थोड़ा सा टाइट था, तो वी हैड ए फेलो, नॉन फेलो जो कर सकता है। द थिंग इज कि हमें बस साथ में खड़ा रहना है कि सी कि भाई तुम ठीक से कर कर रहे रहे हो। हो। हम्म। वो एक टाइम निकालना पड़ता है बीच में, आधा घंटा 1 घंटा अपने स्केड्यूल से कहीं से, हाँ, और फिर जाके वो करवा के लेकर आना पड़ता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट हाँ, एक करना मतलब पड़ता इसी टाइम शेड्यूल में करना पड़ता है। है। एंड सी टू इट कि उस टाइम पे कोई और कोई मतलब बिग शॉट पेशेंट ना आके बैठ जाए आपके क्लिनिक में। हाँ, ये है प्रॉब्लम, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम कर देंगे। क्रिएट करता है। एंड दूसरा कैसा होता है, सी वी डोंट हैव आवर फैमिलीज हियर, हाँ both of families are like my parents are in Nagpur, his parents are in Odisha. हाँ सो बिकॉज घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम दोनों को ही सब मैनेज करना है, घर, बच्चे, करेक्ट। अपना ये सब फाइनेंशियल, उस पे भी कभी कभी बर्डन आता है, बहुत सारी चीजें अचानक से लग जाती है, हेल्थ को ले लो, ये करेक्ट। करो, बट देन टाइम के साथ सब धीरे धीरे हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली है कि एक दूसरे को समझना है। मतलब अगर मैं हाँ उस टाइम पे चिड़चिड़ी हूँ और मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो देन ही इज काम, ही इज अंडरस्टैंडिंग, he करेक्ट। is under pressure in some official ये, तो that time I don't cling around के मैं उनको रिलैक्स रखती हूँ कि it's okay. एब्सोल्युटली। So पार्टनरशिप। very important। मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए तो है ही है, बट चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए तो डबल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो सही है, वो तो अंडरस्टैंडिंग सही इज है। इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग विद द फैमिली मेंबर्स आल्सो। मतलब हम्म समटाइम्स आई फील दैट वी आर लकी कि हम लोगों को ऐसे पेरेंट्स मिले दोज हु वर फ्रॉम समवेयर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, एंड यू नो स्पेशल किड्स के साथ उनका पहले इंटरेक्शन हुआ है। सो हाँ वी नेवर हैड दैट इशू कि इसको थेरेपी क्यों ले जाना है, कब तक लेके जाओगे, जो पेरेंट्स में होता हाँ है हाँ हाँ इसके हाँ पीछे कितना फाइनेंस खर्च हो रहा है। हमारे घर में हाँ कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि क्यों जाना है, क्या करना है। अगर आपको कुछ लाइक वी वेंट टू चेन्नई टू मीट दैट मैम, हाँ ज्योति मैम। सो इट लाइक हमारा डिसीजन था, हमें जाना है, तो एवरीबॉडी वाज सपोर्टिव, ठीक है जाओ। हाँ। तो ऐसी कोई भी चीज के लिए लाइक हम एवरी ईयर वी कम टू मुंबई फॉर हर फॉलो अप, न्यूरो एंड ऑर्थो फॉलो अप, हम्म एवरी ईयर वी हैव अ फॉलो। सो इट्स लाइक अंडरस्टूड इन द फैमिली कि ये जाते हैं उस टाइम पे। सो हम्म। लाइक फॉर एल्डर वन समवन इज अवेलेबल हियर। करेक्ट करेक्ट। And secondly, Ajay earlier also said ना कि पूरा फैमिली सपोर्ट करता है, so they never हम्म। question when it comes to Tripti, it is never questioned. क्वेश्चन। We make them क्वेश्चन अगर करते हैं कि I mean ये नहीं कि वो मना करते हैं, हम्म। they are curious क्यों जा रहे हो आप वहां पर, we explain, then they वो मान जाते फिर चीजों को। ओके। Like उस we, जैसे she said कि हम लोग बीच में चेन्नई गए थे, तो वाई चेन्नई, क्यों यहाँ कुछ नहीं है क्या, तो उनको समझाना पड़ा कि क्यों चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई में कौन है हम्म वहां पर। No, हम्म sometimes it happens like आप
बेस्ट ट्रीटमेंट एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ही मिलेगा, हाँ, आपको बेस्ट निम्हांस में ही मिलेगा, निमांस कहीं में वही और बोल। उतना अच्छा शायद ना मिल पाए, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो इसलिए आपको वो बताना पड़ता है कि वहां पर ऐसा ऐसा चीजें हैं, तो हम लोग एक बार जाकर वहां पर कंसल्ट करना चाहते हैं। सो इट इज अंडरस्टूड, सो द नेवर ऑब्जेक्ट कि नहीं जाना चाहिए, हम्म। नोबडी ऑब्जेक्ट्स। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, आपके आपके मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आई थिंक ऑल्सो फैमिली का ये सपोर्ट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे याद आता है एक चीज मैं आपको पूछना भूल गई। व्हाट अबाउट पेरेंट सपोर्ट, मतलब आप जहाँ पे थेरेपी सेंटर्स में जाते हैं, आपको दूसरे पेरेंट का पेरेंट ग्रुप या पेरेंट सपोर्ट सिस्टम आपको कुछ पहले से मिला है? आपको मतलब दूसरे पेरेंट्स हु आर हैविंग किड्स विद सिमिलर इश्यूज, ऐसे टाइप का आपको कुछ सपोर्ट मिला था या मिला है, ऐसा कुछ है? सी सपोर्ट सिस्टम में आई वुड से कि जैसे हम लोग जब जाते हैं ना थेरेपी में, तो हाँ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों है, कोई सीपी है, कोई ऑटिज्म है, हाँ। टाइप्स ऑफ सीपी है, ये है। तो कई बार ऐसे होता है कि अपने से खराब कंडीशन है, कई बार अपने से अच्छी कंडीशन है, तो जब वो थेरेपी करते हैं इम्प्रूव करेक्ट। करके ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कि जब अभी खत्म होने वाला थेरेपी, और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके आ रहे हैं कंटिन्यूसली बट देयर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट। डिफरेंस। तो जब आप रोज उनके साथ मिलने लगते हो, बात करने लगते हो, तो एक बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग वाली ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एट करेक्ट। टाइम्स कई बार ऐसा होता है कि धृति जब मेरा बात नहीं सुन रही होती, तो किसी और पेरेंट ने उसको बोला कि धृति तुझे ये करना, तो शी विल डू, एंड वाइस वर्सा हैपेंस कि अरे सीएल तो कितना अच्छा कर रही है, मुझे चल के बता, तो शील वॉक। अपने पेरेंट्स का सुन के नहीं करते, बट दूसरे पेरेंट्स को दिखाने के लिए करते। सो दैट ग्रुप इज देयर, यू नो ओके। कि मतलब सपोर्ट ही बोलोगे आप, एक दूसरे के बच्चों को सपोर्ट करते हैं। एट टाइम्स हम अगर बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, तो भी हम थोड़ी देर एक दूसरे से जब बात करते कि नहीं, ऐसा करने से हुआ था, मैंने ये वाले बच्चे में देखा था, तो इसमें भी होगा। हाँ। तो करेक्ट। होता है, क्योंकि आप रोज ही जा रहे हो, इट्स नॉट वंस अ वीक, लाइक हमारा तो वी एब्सोल्युटली। आर गोइंग डेली। करेक्ट। सो लाइक धृति तो अभी उसका सेकेंड होम हो गया है, सिंस लाइक 4-5 years वी आर गोइंग देयर हाँ। यहाँ पर। तो एवरीबडी जो है सब जानते हैं, जो बहुत दिनों के बाद देखते हैं वो भी उसको देख के अप्रिशिएट करते हैं, अरे बहुत चेंज दिख रहा है उसमें। सो वो भी हम्म। सुन के उसको अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। एंड ऐसा ही पेरेंट ग्रुप है, मतलब वेरी गुड। तो मतलब वो भी आपके सपोर्ट के लिए या फिर बेसिक इसके लिए थोड़ा हेल्प करता है, और आपके है। रेगुलर रेगुलर सोशल फैब्रिक का वो पार्ट हो जाता है, जैसे बोल रहा है यू आर गोइंग एवरी डे, हाँ, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन एंड लाइव्स ऑल्सो होता है। बेसिकली। इवन मतलब उनके साथ कुछ नया हुआ, कुछ हुआ अपार्ट फ्रॉम किड्स, भी वहां पर डिस्कस होता है, ऐसा नहीं है। या यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसा वो बना रखा है, लाइक ठंडियों के टाइम पे हुरडा पार्टी है, औरंगाबाद में चलती है। ओके। क्या बन रहता है हुरडा, ज्वारी। जवारी। सो वो हाँ। फार्म्स में बनता है, और उसमें उसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनता है। तो दिन वी ऑल मदर्स विद किडोस वहां पर गए एक संडे को, तो ऐसा भी टाइम स्पेंड करते हैं कि वाई थेरेपी वेरी ओनली, गुड। अब हाँ इनके साथ तो हाँ। रहना है, तो वी शुड एंजॉय ऑल्सो। तो ऐसा ऐसा भी करते हैं, मतलब खेलने के लिए कहीं लेके गए हैं, पिकनिक करने के लिए, कुछ नहीं करेक्ट। तो वहां पे ही डब्बा पार्टी, कुछ बना लिया, सबने अपना अपना ला लिया हाँ। करेक्ट, तो वही तो बोल रही हूँ, सोशल सोशल इंटरेक्शन का वो एक पार्ट बन जाता है बेसिकली। है। ओके। मतलब अब ऐसा हो गया कि वी आर बोलिए बोलिए बोलिए। वी हैव नाउ टू डुअल लाइफस्टाइल। एक मॉर्निंग से आफ्टरनून इज प्रोफेशनल, एंड आफ्टर दैट इज पेरेंटल। सो प्रोफेशनल वाले में मॉर्निंग में हमें जो अपने पेशेंट्स के साथ डील करना है, and अपना नजरिया भी चेंज हो गया आफ्टर धृति टेकिंग पेरेंट्स एंड काउंसलिंग, देम हैव चेंज्ड अ लॉट। सो वो होता है, एंड आफ्टर 4 वी आर अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, सो 4 to 7 वी आर इनटू दैट। थोड़ा और बताइए ना, कैसे काउंसलिंग के टाइम पे आपका नजरिया चेंज हुआ है आफ्टर द्वितीय डायग्नोसिस, नाउ व्हेन यू आर काउंसलिंग पेरेंट्स, क्या चेंज हुआ है? सी पहले मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलूंगी, अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू टेक किडोस फॉर पीडियाट्रिक स्क्रीनिंग, हियरिंग हाँ। स्क्रीनिंग, सो लॉट ऑफ बच्चों वर फ्रॉम एन आईसीयू और विद ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। तो आई यूज्ड टू जस्ट स्टिक अराउंड माय हियरिंग असेसमेंट एंड उसका रिस्पॉन्सेस।
बट सही। नाउ माय काउंसलिंग इज इन टू कि क्यों फिजियोथेरेपी जरूरी है, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होगा। अभी से ही करना है आपको, आज से ही आप एमआरआई कराओ या ना कराओ, उसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन इज फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी या थेरेपी, एनी काइंड ऑफ करेक्ट, थेरेपी। करेक्ट, इट इज नॉट ओनली मेडिकेशन, मेडिकेशन इज ओनली टू सपोर्ट। करेक्ट। So this is a strong evolution of my counseling part. एंड समटाइम्स मैं बोलती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। एंड मैं कभी कभी धृति की फोटोज भी दिखाती हूँ। जो पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा वैसे दिखते हैं ना कि क्या करेंगे मैडम, कैसा होगा, सो मैं हाँ, दिखाती हूँ कि ये धृति ऐसी है और अभी ये धृति ऐसी है, ये इसका आवाज में शी इज रिकॉर्डिंग एंड शी इज टेलिंग। तो होता है चेंज, आपको खाली कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, पेशेंस। जादू हम्म, नहीं होगा कि 1 महीने में चलने लग जाएगी, 2 महीने में ये करने करेक्ट। लग जाएगी, नहीं। हम्म। सो दिस हैज चेंज्ड। मतलब अभी ऐसा हो गया कि हर बच्चों को मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, नॉट ओनली हियरिंग एंड स्पीच। एब्सोल्युटली, अपने होलिस्टिक ग्लोब डेवलपमेंट, एक पेरेंट को क्या चाहिए, आप एकदम यू आर प्रोजेक्टिंग लाइक अ पेरेंट बेसिकली, कि मुझे तो सब पूरा ऑलराउंड मुझे सभी देखना है ना। एंड एक चीज ये भी बोलूंगी कि हमने एज अ पेरेंट कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन लूप होल उसमें भी होता है। हम लोग भी पूरा फॉलो नहीं कर पाते, उसका गिल्ट कॉन्शियस भी होता है कि यार आज उसके साथ ये नहीं कराया। हमने प्लान किया हुआ है कि उसको सेल्फ ब्रशिंग सिखाना है, हाँ, 2 दिन सिखाते, तीसरे दिन लेट हो गया, नहीं सिखा रहे हैं। ऐसे भी दिन होते हैं और खुद भी गिल्ट फील होता है, बट देन अगेन बाउंस बैक, चलो आज फिर से कोशिश करते हैं। करेंगे। तो, करेक्ट। तो कहीं पर ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जॉब नहीं कर रही होती और पूरा टाइम उसको देती तो शायद और अच्छा डेवलपमेंट होता है, ये भी फील होता है। इट इज बाउंड, वो होने ही वाला है। व्हाट इफ, सब हम सब सिनेरियो में व्हाट इफ तो सोचते ही है ना, अगर ये नहीं होता तो ये होता। सो ऐसा है। एंड एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, अगर किसी पेरेंट्स को आपने कुछ कहा है कि ये करा के लेकर आओ, पेरेंट्स बोलते कि नहीं सर, नहीं मैडम, नहीं हो पाया, इट्स ओके, क्योंकि हम लोग भी तो नहीं कर पाते हैं। देन वी टेल सही देम बात कि है। ठीक है, आपने नहीं कर पाया, इट्स ओके, क्यों नहीं कर पाए, वी फाइंड आउट द रीजन एंड देन वी टेल कि इसको आप किसी और तरीके से कैसे आप कर सकते हो। सो इट्स ओके, आपने नहीं कर पाए, टेक 1 or 2 more days एंड देन गेट बैक टू अस। पहले कैसा होता था कि नहीं, आपको कराना है, हम्म। यू हैव टू डू इट। अभी अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, वी अंडरस्टैंड, क्योंकि कब ये तो हमारे साथ भी हो रहा है कि वी ऑल्सो डोंट गेट द टाइम। करेक्ट। तो ठीक है, दैट इज मतलब अंडरस्टैंडेबल कि इट्स ओके ना। तो हम लोग अभी उनको बॉम्बार्डमेंट भी नहीं करते कि पेरेंट्स को नहीं, जो बोला गया है आज ए स्पीच थेरेपिस्ट, आपको वो मैंडेटरी करवाना है, आपको घर में मैंडेटरी ये प्रैक्टिस करवाना है, इतने टाइम्स करवाना, इट्स नॉट दैट वे। ठीक, इट्स हम्म। ओके, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो। बट इसमें एक मॉडिफिकेशन ऐसा करना, मतलब ऐसा चाहिए, आप नहीं करा पाए ठीक है, लेकिन ये कराना क्यों जरूरी है वो समझाना वो पड़ता समझाना। कि आप हम्म। उनको छोड़ दोगे कि नहीं कराए तो नहीं, तो कभी नहीं कराएंगे। सही तो बात है। इसको हम इस तरीके से पुटअप करते हैं, या जैसे हमने अपने इसमें इनकॉर्पोरेट किया कि उसको एज अ ट्यूशन लेके नहीं बैठना है कि तू बैठ, तेरा ओरोमोटर कराना है। हाँ। लाइक सुबह ब्रशिंग के टाइम पे करा रहे हो, हम्म। खाने के टाइम पे खाने कर। के टाइम पे थोड़ा सा पहले कराया, फिर खाना खिला दिया, रात को सोते टाइम या बेड पर सुबह उठते वक्त जब वो स्ट्रेचिंग करे, कुछ करे, तब आपने उसके साथ कर लिया। सो दैट वे हमको उसमें से फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको ट्यूशन की जगह जैसे बैठा के नहीं कर सकते हम्म। एनीथिंग। मतलब इवन कुछ चीज पढ़ा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो वो भी नहीं होता। अभी कई बार ऐसा होता है, वो स्टैंडिंग फ्री में फिजियोथेरेपी में खड़े होती है, तो मैं उसको कुछ बुक में स्टोरीज पढ़ाती हूँ, उससे क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। तो हम्म। मेरा ऐसा बोलना है कि स्पीच को स्पीच के जैसा लेके मत बैठो। ड्यूरिंग फिजियो ऑल्सो यू कैन यू डू स्पीच, हम्म। ड्यूरिंग फीडिंग ब्रशिंग ऑल्सो यू कैन डू ओरोमोटर। एब्सोल्युटली। इंटीग्रेट एवरीथिंग। इंटीग्रेट है, मतलब हाँ। जैसे वो मैम है ना जो हमको जिन्होंने गाइड किया, तो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, करेक्ट। इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा लाइफस्टाइल ही वैसा होना चाहिए। टू हम्म। कैरी धृति हमेशा, जब भी तुम उसको गोदी उठा रहे हो, ऐसा नहीं उठा रहे हो, वो पोजिशनिंग से, प्रॉपर पोस्चर से उठाओ। उसको जब करेक्ट। ऑटो में बैठा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, कार में भी बैठा रहे हो, तो इस तरीके से उसका पोस्चर होना चाहिए, चेस्ट ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यू इनकॉर्पोरेट इनटू योर डेली लाइफ स्टाइल, हम्म। देन यू हम्म। वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। And it करेक्ट। has made changes with respect हम्म। to posture, it has। वेरी गुड।
सर ने भी जो है जैसे इनिशियली बोला कि नहीं मुझे 40 मिनट्स नहीं चलाना है, मैं 2 मिनट्स चला के उधर जाके वापस आके बिठा दूंगा, तो आपके डेली लाइफ में वो इंटीग्रेट हो गया, राइट? सो इट इज मोर इफेक्टिव, आई थिंक सो फिर। तो उसमें कैसा है ना, एज अ पेरेंट हमको भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा कि हमने कुछ कराया है नहीं, एंड करेक्ट। बच्चे का भी हो गया, मतलब कुछ तो हुआ, भले हमने 10 बार नहीं कराया बट 2 बार तो कराया। करेक्ट। एब्सोल्युटली। सो वो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट प्रोफेशनल ये नजरिया होना चाहिए कि उसको ट्यूशन जैसा नहीं कराना है, लेकिन हम्म। आपके लाइफस्टाइल में आप देखो कि उसको कहाँ वो डाल सकते हो, आप कहाँ फिट करवा फिट सकते कर सकते हो। होना तो Correct. जरूरी है, नहीं तो सिखाएंगे कैसे। हाँ, वो तो है ही। मतलब हाँ, एडिशनल इन सर्विसेज का जो कर रहे हैं, रेगुलर करके भी क्या फायदा अगर घर पे हमने लाइफ स्टाइल में इंटीग्रेट नहीं किया तो। ओके। सी एज अ डेवलपमेंट ऑफ दिस चाइल्ड, अगर हम प्रोफेशनल नहीं भी हैं, सिर्फ पेरेंट भी हैं, तो भी इट इज लाइक एवरी टाइम द ग्रुप ऑफ सपोर्टिंग मेंबर्स चेंजेस, इट इवॉल्व्स, हम्म। तभी आपका डेवलपमेंट होता जाएगा एवरी टाइम। जब भी आपका बच्चा छोटा है तो आपको लगता है फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिस्ट मेन कोर मेंबर है, फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको लग रहा है अभी स्पीच आना चाहिए, स्पीच आ गया, फिर उसके बाद आपको लग रहा है एजुकेशन, एजुकेशन आ गया, लेकिन वो पीछे वाली चीजों को छोड़ना नहीं है, उनको भी साथ में लेते रहना, वो मॉनिटरिंग भी जरूरी है। कई हम्म। बार ऐसा होता है कि ये सब साथ में मिलके हमको बेटर पोस्चर, बेटर फीडिंग हैबिट, बेटर एजुकेशन, तो एक साथ काम करने के लिए वो लगता है, और इट सही बात है। कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये होता रहेगा। और यू शुड बी खुला होना चाहिए आपका माइंड, कि अगर आपको कोई इनपुट दे रहा है तो आप लो, हम्म। और उसको कैसे अपने इसमें ऐड ऐड करो, तो ये बहुत हमने इम्पोर्टेंट है। हमने एक्चुअली जो कॉलेज में पढ़ा, आपने जस्ट यू वर्डेड इट डिफरेंटली। लेट्स सी, कुछ भी हो जाए, पेरेंट कोर मेंबर्स रहते हैं, बाकी के हमारे मेंबर्स एज एंड नीड के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, ट्रूली। कि पेरेंट हमेशा, हम लोग जब पढ़े हम लोग को लगेगा कि अरे स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट को कोर मेंबर है, वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नहीं। द पेरेंट इज द कोर मेंबर, और बाकी सब लोग डिपेंडिंग ऑन द नीड ऐसे थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। एंड दूसरा ये चीज है कि लाइक स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सीपी केस, जो पेरेंट्स को लगता है कि यार पहले बच्चे को बैठना, खड़े होना आना चाहिए, बाद में वी विल थिंक ऑफ स्पीच एंड फीडिंग, तो वो हाँ। थोड़ा जो पर्सपेक्टिव है लोगों का वो चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इट हैज टू गो साइमल्टेनियसली। यस, दोनों पैरेलली डेवलप होता रहता है। होता है, हम्म। क्योंकि हमने ये देखा है कि जॉ कंट्रोल तभी आया है जब हिप और शोल्डर का ये आया था। करेक्ट। सो it is overlapping. Physio, OT, speech should go hand in hand, in especially in CP cases. हम्म। एक के बाद एक नहीं होता है, या ना ये Not कर लो, CP, it is फॉर एवरीवन for एक्चुअली। everyone. हाँ, हाँ, I हाँ। mean it is for ADHD, it is for autism also. कि आपका अगर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बहुत अच्छे से चल रहा है, आप देखेंगे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट सब कुछ होगा। सही इट बात कैनॉट है। हैपन कि उसका उसका चलना डेवलप हो रहा है और उसका स्पीच नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पीच में इंप्रूवमेंट हो रहा है। हो सकता है कि हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है कि एज ए पेरेंट्स उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट प्रोफेशनल उसको नोटिस कर लेगा। सही बात बोला आपने सर, एब्सोल्युटली। और जो आपने दूसरी बात बोला फैमिली डायनामिक्स का, इस सब के थ्रू बच्चे का इमोशनल ग्रोथ हो रहा है। बच्चा देख रहा है मेरा फैमिली के साथ व्हाट इज माय डायनामिक्स, माय मेरे से स्ट्रेस हो रहा है, मैं कितने मतलब मैं कितने खुशी में हूँ जब मम्मी वापस आ रही है, जब पापा वापस आ रहे हैं, दीदी के साथ कैसा ये, इतने सब में इरेस्पेक्टिव ऑफ बच्चे को क्या उसे उसका भी तो डेवलपमेंट, इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का भी तो हो रहा है ना। दे आर ऑल्सो असेसिंग द एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली मेरे आसपास जो है। इट इज देयर, वो बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मैंने ऐसा कई पेरेंट्स देखे हैं, दोज हु अवॉइड टेकिंग देयर किड्स बाहर, हाँ। कि हाँ। नहीं, मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स या जो भी रीजन होगा, हाँ। बट मुझे लगता है कि जितना आप अपने बच्चे को बाहर का एक्सपोजर देते हो, एंड टॉक टू देम अबाउट इट, एंड टॉक टू पीपल अराउंड अबाउट हर, तो एब्सोल्युटली। कैसा होगा, अवेयरनेस तो बढ़ता ही बढ़ता है, शी ऑल्सो बिकम्स कॉन्फिडेंट ना, कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, मुझे यहाँ जाने में डर नहीं लगना चाहिए, आई हैव माई फैमिली विथ मी। एब्सोल्युटली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई वुड से कि धृति का इमोशनल या जो ये ग्रोथ है, वो इसलिए भी है क्योंकि हमने कभी उसको वैसे करके नहीं रखा। इट शी हम्म। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट शी सेड, हम्म। मैं ऐसा ऐड करूंगा कि अगर आप उसको बाहर लेके जाते हो तो
लेट्स से कि आप कोई पर्टिकुलर जगह जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर पार्क जा रहे हो, तो उनके मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाता है कि अच्छा इस पार्क में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। लाइक हाँ। टुडे हर मासी आज कम, सो वे जस्ट ऐसे मजाक कर रहे थे कि शाम को मासी के साथ कहाँ जाना है, सेठ कि होटल जाएंगे। तो सेठ कौन सा होटल जाएंगे, तो हम लोग छत्रपति संभाजी नगर के अंदर जो जो होटल्स हम लोग यूजुअली जाते रहते हैं, उससे सब कुछ याद रख लिया। और उसने कम से कम हमको 5 या 6 होटल का नाम गिना दी कि हम इन होटल्स में जाएंगे, और ओके ठीक है। आपको उस ऑप्शन दे दिया, उसने चूज कीजिए आपके। इट इज दैट वे, मतलब लेके जा रहे हैं तो उनको उस जगह के बारे में भी तो नॉलेज मिल रहा हाँ, है। लाइक कभी एब्सोल्युटली। कभी मैं और दिशिता हम उसको लेके जाते हैं रिलायंस मार्केट में, कुछ सामान लेना है तो हम जानबूझ के लेके जाते हैं। मैं ला सकती हूँ हाँ या मैं ब्लिंकिट से भी ऑर्डर कर सकती हूँ, बट एक्सपोजर कि हाँ। यहाँ जाते हैं तो यहाँ क्या, तो उसे पता है कि यहाँ डायपर मिलता है मेरा, यहाँ मेरे हम्म। चुक्कोस मिलते हैं, या मेरा बिस्किट मिलता है, तो ये लेना है मम्मा, ये लेना है। मतलब शी इज ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट। तो खुद की आइडेंटिटी कितनी जरूरी है, जरूरी मतलब। है, और कहीं ना हाँ। कहीं हमें बनानी पड़ती है, नहीं तो वो बनेगी एब्सोल्युटली। नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड फिर एक्सपेक्ट करना कि जैसे आप बोल रहे थे कि अरे वो देख के तो साइन करे, तो ये इनिशियल बेस है उस आइडेंटिटी की, जिससे उसको पता है कि हाँ, माय पेरेंट्स ट्रस्ट मी कि मैं ये पढ़ के साइन करूंगी। इवन अगर मैं आज से 12 साल की बात कर रही हूँ, 12 साल बाद की बात कर रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। ये है। और दूसरा ऐसा है, मतलब जैसे व्हेन शी गेट सुपर एक्साइटेड तो वो चीखती है। अ, ओके। तो वो एक है कि इशू थोड़ा होता है, जैसे होटल में जा रही है तो खुशी के मारे चिल्ला देगी, हाँ क्लास में जाएगी तो एक्साइटमेंट में टाइट कर लेती है बॉडी और चिल्लाती है। हाँ। तो ये हमको उसको समझाना, हम तो उसको समझाते हैं कि धृति ऐसे नहीं करना है, आप चिल्ला रहे हो तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको खुशी हो रही है तो आप बोलो यस मम्मा आई एम हैप्पी या कुछ नहीं। बट हमेशा हमेशा वो नहीं होता, शी कांट कंट्रोल। करेक्ट। तो लोग देखेंगे या वो करेंगे, तो वो चीज टाइम पे आपको ये होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके, लेट आपको इट गो। पैनिक नहीं होना, आपको उस पैनिक समय नहीं उसको होना। स्कोल्ड भी नहीं करना। इट्स ओके, ठीक है आपने चिल्ला दिया, आपको बहुत न्यूट्रल तरीके से उसको बोलना पड़ा, नहीं मत चिल्लाओ, इट इज नॉट, अपन कान को अच्छा भी नहीं लग रहा है और हाँ। लोग देख रहे हैं, तो इट्स ओके, आप नहीं चिल्लाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शी अंडरस्टैंड्स दैट। वो आपको उसके एकदम बॉडी का से, रिस्पॉन्स है, वो उसके हाँ, बॉडी का रिस्पॉन्स है वही। अभी एकदम। जैसे क्लास में गई, इतने दिनों के बाद स्कूल गई, तो फर्स्ट डे उसका पूरा चिल्लाने में ही गया था। वो जो ठीक उसका न्यू टीचर और सारे फ्रेंड्स 2 महीने के बाद मिले, तो शी, मिले। तो उसकी टीचर ने बोला कि धृति अभी 2 बार 3 बार आपने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप अब चिल्लाओगे तो मैं क्लास के बाहर निकालूंगा। तो फिर हम चुप हो गए। सो दैट वे, मतलब शी अंडरस्टैंड्स, बट समटाइम्स उसका कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ। सो दैट द सराउंडिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाट, करेक्ट। लाइक इनडायरेक्टली मैं इंक्लूजन की बात कर रही मैं वही बोल रही थी, दैट इज जस्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस ना। दैट इज जस्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। क्यों, कोई जब ग्रीव भी करता है, कोई रोता है, कोई आप पूरा चुप हो गया, हम लोग पूछते रहते क्या हुआ क्या हुआ, दीज आर एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। कैसे लोग अलग अलग तरीके से हम इमोट करते हैं। सो दिस इज इंक्लूजन, दिस इज ट्रू इंक्लूजन। और जैसा आप लोग दोनों ने पहले बोला, बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे, इट इज द एडल्ट्स। बच्चे बच्चे खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे कि सो। उसके जितने भी पीयर्स हैं, मतलब उसके कजन्स हैं, सब लोग उसका बहुत केयर करते हैं। सभी कजन्स उसके बहुत केयर करते हैं। हाँ, नोबडी इज लाइक कि उसको हिट करना, जस्ट बिकॉज इज लाइंग डाउन उसको हिट करेंगे, उसको मार के चले जाएंगे। नोबडी इज डज दैट। ओके। उल्टा वो, इफ आई एम नॉट अराउंड ना, तो प्रिया मौसी धृति दीदी पानी मांग रही है और समथिंग, हम्म। प्रिया बुआ धृति दीदी आपको बुला रही है, दे आर क्यूरियस कि धृति दीदी चल क्यों नहीं पाती, ये हम्म। अलग से शूज क्यों पहने हैं। सो वी करेक्ट। एक्सप्लेन। बट करेक्ट। मतलब ये चीज मैंने इनफैक्ट स्कूल के प्रिंसिपल को भी बोला। हम्म। जैसे एक आधे पेरेंट ने कंप्लेन किया था मैनेजमेंट को कि धृति जो क्लास में चीखती है, तो घर में जाके वो बच्चा भी वैसे चीखता है। तो दैट अच्छा। प्रिंसिपल टोल्ड मी, हम्म। आई सिंपली गिव एन आंसर कि उसके भाई बहन उसके साथ ही डेवलप हुए मैडम, उसकी रेगुलर और भी ऊपर नीचे रहने वाले फ्लैट में बच्चे हैं, बट बाकी किसी ने तो नहीं सीखना सीखा। सिंपल। तो आप हम्म। मुझे एक्सप्लेन करो ना, जब उसके साथ रहने वाले घर में बच्चे नहीं सीखे, और बाहर का कोई, तो बाहर का कोई और कारण से भी तो सीखता है ना, धृति के कारण ही एब्सोल्युटली। सीख रहा है ऐसा नहीं। सो दैट टाइम उनको समझ में आ गया। यस। और आप जो उनके कजन्स के बारे में बात कर रहे हो, आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो इंस्टेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इस चीज के बारे में पूछो मत,
ऐसा ऐसा देखना नहीं, नहीं, आपने सही इंफॉर्मेशन दिया बच्चों को। यू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, उनकी क्यूरियोसिटी बराबर से आपने सुलझाया, सो उनको भी फिर अच्छा लगता है ना। मतलब वो एडल्ट का वो बायस लेके आगे नहीं जाते हैं, एंड दे रिमेन काइंड बेसिकली। सो दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। इवन दिशिता के साथ ऐसा हुआ। दिशिता वॉज 5 व्हेन शी वॉज 3 व्हेन धृति वॉज बॉर्न। तो बाय द टाइम शी वॉज 5, मामा माँ इसके क्लास के बाकी बच्चे तो चलते हैं, ये क्यों नहीं चल रही है? हम्म। So we used to tell her कि Dhriti has some problem in the brain. That is the reason she is delayed. So we are actually training her to walk, Dishita. हम्म। हम्म। सो धीरे 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 अभी वो अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करती है, तो वो बता देती कि धृति को ऐसा प्रॉब्लम है, तो अभी उसका थेरेपी चल रहा है। वेरी वेरी गुड। कूल। वेरी गुड। और जितना कोल्ली आप बताओगे उतना दिखाता है कि मतलब आप हाइड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। वैसे फैमिली मेंबर्स आर द फर्स्ट एडवोकेट्स, वही तो चाहिए, मतलब धृति को भी तो वही चाहिए। दैट इज सो तो ये गुड। चीज से बहुत फर्क, ये चीज से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इस प्रोफेशन को बिलोंग करते थे और हमने ये केसेस देखे थे अपनी लाइफ में। हम्म। कहीं ना कहीं उसने भी पार्ट प्ले किया है कि टू एक्सेप्ट इट रेडीली, मे भी, है ना? शायद हम अगर नहीं अपनी लाइफ में नहीं कभी होता देखते तो तो कुछ शायद डिफिकल्ट रहा, डिफिकल्ट क्योंकि होता। जितने भी पेरेंट्स अभी हम लोग देखते रहते हैं, एम्पलीफोन में तो उतना नहीं है, बट हाँ जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ, इनके थेरेपी सेंटर्स में जाता हूँ, आई सी सर्टन पेरेंट्स के कुछ इश्यूज रहते हैं, दे कीप ऑन हम्म। नहीं हो रहा है सर, बच्चा कितने साल से हम लोग आ रहे हैं, एंड दे कंप्लेन कि सर हम लोग 1 महीने से आ रहे हैं, बच्चे में कुछ भी इंप्रूव नहीं आ रहा। मैंने उनको समझा था 1 महीने में क्या कुछ एक्सपेक्ट करोगे, इट सही इज बात है। कुछ भी नहीं, 1 महीने तो इट इज नॉट इवन 1% ऑल्सो जो आपने दिया हुआ है। सो सही बात है। फिर मैं उनको खड़े खड़े ही समझाता हूँ कि नोट इज नॉट दैट वे। आपको 18 साल, मतलब 18 तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, बट वी नेवर नो कि कितने साल तक आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट कि 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। पेशेंस, इन्होंने बोला ना, प्रिया मैम ने बोला ना थोड़े टाइम पहले, पेशेंस। पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेशेंस। ओके। सो थैंक यू, आप दोनों ने टाइम निकाला इस चीज के लिए। रीचिंग आउट टू पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज अगर आपको नॉलेज होता है तो फिर कैसे वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आई थिंक दैट इज व्हाई वी डिड इट टुडे। थैंक यू सो मच that you are open and you are ready to share so much. It will help us also to model how we counsel, how we talk. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वी गॉट अ नाइस प्लेटफॉर्म थ्रू यू टू रीच आउट टू पीपल of what we Yes. thought in our mind, and expressing it, so that lot and lot of people will share and they'll understand. Absolutely, absolutely, especially across issues जैसे ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, ये जो आप एक्सेप्टेंस की बात किए कि है तो है, बताओ, सामने से बताओ। आपके नेबर्स चेंज होंगे, बिल्डिंग चेंज होगा, बच्चा आपका है। दैट इज जो आपने, वैसे जो आपने जो प्रोजेक्ट किया कि आज बड़ी बहन भी एकदम शान से बोलती है हाँ चल रहा है थेरेपी। So that is a part of our life now. That is extremely motivating, very positive, very motivating. So thank you so much, sir and ma'am both. आपके बिजी शेड्यूल, धृति के शेड्यूल में से ये मेरे साथ करने के लिए रियली थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। होपिंग इससे हम काफी लोगों को पहुंच पाए और बता पाए क्या, हाउ, व्हाट लाइफ इज। So thank you so much. Or if anybody has questions, I think they can, matlab, anybody has anything else to discuss with you, they can get through to you via me. हमारे college alumnus में तो everybody knows you, so that is not an issue. So thank you so much. Thank you, Devo.